Good morning, students. Welcome to all of you. Today we are going to study 5th chapter of 9th class English poetry. The title of the poem is I Vow to Thee My Country, and it is composed by Sir Cecil Spring Rice. Students, before starting the poem, let us have some information about the poet. Sir Cecil Arthur Spring Rice was born on February 27, 1859 and died on February 14, 1918. He was a British diplomat. He was educated at Eton School and then at Balliol College, Oxford. He is best known as the composer of I Vow to Thee My Country. Sir Cecil Spring Rice is a minor poet. He has written a few poems, but the present poem has made him famous. He is praised for his lofty idea of patriotism in this poem. Students, the title of this poem is I Vow to Thee My Country. बच्चों, इस कविता का शीर्षक है I vow to thee my country. I means मैं, vow means शपथ लेता हूँ, to thee means तुम्हारी, my country मेरे राष्ट्र, मेरे देश, अर्थात हे मेरे देश, मैं तुम्हारी शपथ लेता हूँ. Students, before starting the poem, let us have some information about the poem. बच्चों, कविता शुरू करने से पहले चलिए हम कुछ बातें कविता के विषय में जान लेते हैं. This poem is an expression of the poet's deep love for his country. यह कविता कवि की देश के प्रति गहरे प्रेम की भावना को व्यक्त करती है. His love for his country is entire and perfect. देश के प्रति कवि का प्रेम पूर्ण रूपेण सच्चा है. He is prepared to make any sacrifice for it. वह इसके लिए कोई भी बलिदान करने को तैयार है. This poem is full of patriotic feelings and inspires us to be a true patriot. यह कविता देशभक्ति की भावनाओं से भरा हुआ है और यह हमें प्रेरणा प्रदान करती है एक सच्चा देशभक्त बनने के लिए. So students, let's start the poem. I vow to thee my country, all earthly things above, entire and whole and perfect, the service of my love, the love that asks no question, the love that stands the test, that lays upon the altar, dearest and the best, the love that never falters, the love that pays the price, the love that makes undaunted the final sacrifice. Students, now I will explain the poem stanza by stanza. Let us start from the first stanza. I vow to thee my country, all earthly things above, entire and whole and perfect, the service of my love, the love that asks no question, the love that stands the test. I vow to thee my country, all earthly things above. I means मैं, vow means प्रतिज्ञा लेना, to thee तुम्हारी, thee means your तुम्हारी, my country मेरे राष्ट्र या मेरे देश, all में संपूर्ण सभी, earthly means पृथ्वी पर मौजूद वस्तुएं, above means ऊपर, अर्थात हे मेरे राष्ट्र, मैं तुम्हारी शपथ लेता हूँ या प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम पृथ्वी पर मौजूद सभी सांसारिक वस्तुओं से ऊपर हो. Entire and whole and perfect, the service of my love. Entire means पूर्ण, whole means संपूर्ण, perfect means पूर्ण रूपेण. The service means सेवा of my love, मेरे प्रेम, अर्थात हे मेरे राष्ट्र, मैं अपने पूरे प्रेम भाव से पूर्ण रूपेण तुम्हारी सेवा करूँगा. The love that asks no question. The love means प्रेम या स्नेह, that जो कि asks no question कोई भी प्रश्न नहीं पूछता, अर्थात देश के प्रति मेरा प्रेम निसंदेह है, यह कोई भी प्रश्न नहीं पूछता. The love that stands the test. Stands the test means कसौटी पर खरा उतरना, अर्थात देश के प्रति मेरा प्रेम सभी प्रकार की परीक्षाओं में खरा उतरेगा. स्टूडेंट्स, इस पोएम में कवि सेसिल स्प्रिंग राइस कहते हैं कि हे मेरे राष्ट्र, मैं तुम्हारी शपथ लेता हूँ या प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम पृथ्वी पर मौजूद सभी सांसारिक वस्तुओं से ऊपर हो.
हे मेरे राष्ट्र, मैं अपने पूरे प्रेम भाव से पूर्ण रूपेण तुम्हारी सेवा करूँगा। देश के प्रति मेरा प्रेम निसंदेह है, यह कोई प्रश्न नहीं पूछता और यह सभी परीक्षाओं में खरा उतरने को तैयार है। बच्चों, कवि सेसिल स्प्रिंगराइज कहते हैं कि देश के प्रति उनका प्रेम दिखावा नहीं है। स्टूडेंट्स, let us start the second stanza. That lays upon the altar, dearest and the best, the love that never falters, the love that pays the price, the love that makes undaunted the final sacrifice. That lays upon the altar, dearest and the best. Lays upon the altar means sacrifices, बलिदान कर देना. Altar means place of sacrifice, place where offerings are made to God, अर्थात बलिवेदी. Dearest and the best means सबसे प्यारा और सबसे अच्छा. बच्चों, इस स्टैंजा में कवि सेसिल स्प्रिंगराइज कहते हैं कि मैं बलि की वेदी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा, बलिदान कर दूंगा. मेरे पास मेरा जो कुछ भी सबसे अच्छा वह सबसे प्यारा है. द लव दैट नेवर फॉल्टर्स, द लव दैट पेज द प्राइस. बच्चों, फॉल्टर मीन्स वेवर्स, लड़खड़ाना. पेज द प्राइस, पेज द प्राइस मीन्स विलिंग टू पे एनी प्राइस, कोई भी कीमत देने को तैयार होना. स्टूडेंट्स, कवि कहते हैं कि देश के प्रति मेरा प्रेम कभी भी नहीं लड़खड़ाएगा. देश के प्रति मेरा स्नेह कोई भी कीमत देने को तैयार है. द लव दैट मेक्स अनडॉन्टेड द फाइनल सैक्रिफाइस. अनडॉन्टेड मीन्स फियरलेसली, निर्भीक होकर. फाइनल मीन्स कमिंग एट द एंड, अंतिम. और फाइनल सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइसिंग वंस ओन लाइफ, अर्थात जीवन की आहुति, अपने प्राणों की बलि दे देना. अर्थात मेरा प्रेम राष्ट्र के प्रति निर्भीक होकर बिना लड़खड़ाए जीवन की आहुति भी देने को तैयार है. स्टूडेंट्स, चलिए एक बार फिर से स्टैंजा का अर्थ समझ लेते हैं. कवि सेसिल स्प्रिंगराइज कहते हैं कि मेरे पास मेरा जो कुछ भी सबसे अच्छा व सबसे प्यारा है वह देश की सेवा के लिए बलिदान कर दूंगा. देश के प्रति मेरा प्रेम कभी भी नहीं लड़खड़ाएगा. देश के प्रति मेरा स्नेह या प्रेम कोई भी कीमत देने को तैयार है. मेरा प्रेम राष्ट्र के प्रति निर्भीक होकर जीवन की आहुति भी देने को तैयार है. स्टूडेंट्स, इस पोएम में कवि सेसिल स्प्रिंगराइज कहते हैं कि मैं अपने राष्ट्र से, अपने देश से इतना अधिक प्रेम करता हूँ कि मैं इसकी सुरक्षा, विकास व उन्नति के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे सकता हूँ. स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम. इन दिस पोएम द पोएट टेक्स अ वॉव टू लव हिज मदरलैंड होल हार्टेडली. बच्चों, इस कविता में कवि सच्चे मन से अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम करने की शपथ लेता है. He also takes a vow to give his motherland his dearest and the best. वह अपनी मातृभूमि के लिए अपनी सबसे प्रिय तथा सर्वश्रेष्ठ वस्तु को भी देने की शपथ लेता है. He likes to make bold sacrifices for her cause. वह मातृभूमि के लिए साहसपूर्ण बलिदान करना पसंद करता है. अर्थात कवि अपने प्राणों की आहुति भी देने को तैयार है. स्टूडेंट्स, ये पोएम यहीं पे समाप्त होती है और आपने देखा कि कितनी प्रेरणाप्रद और देशभक्ति से भरी हुई पोएम है और यह हमें प्रेरणा प्रदान करती है कि हम भी एक सच्चे देशभक्त बने. दिस पोएम इज फुल ऑफ पैट्रियोटिक फीलिंग्स एंड इंस्पायर्स अस टू बी अ ट्रू पैट्रियट. दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. थैंक यू.